Vice Chancellor Sahab, Dr. A.P. Gupta ji, and Dr. Atullah Vajpayee ji to adorn path. गेट आइए सर। And Dr. Priyanka Minocha to welcome our Dean, Dr. M.M. Mangal. Now, I call upon Dr. Atullah Vajpayee to deliver his welcome note and brief on the World Stroke Day's significance. Welcome, Maharaja Sahib. If you want to sit that side, that's fine. Because seeing I am small. Yeah, because you asked me to educate, so I'll do my job. Principal Mangal sir, my respected senior colleagues, dear friends, boys and girls. Well, World Stroke Day, basically, before we understand stroke, I'll be just briefing you about what organ we deal with is brain. Mastishk, Dimag. I always take pride in saying this. We deal with the organ which has a history of 100 million years. Unlike, obviously, I mean, my जो उसमें ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ सेल्स में और साइज में ग्रोथ हुई है, बट ब्रेन का एवोल्यूशन जो है, जो हिस्ट्री है 100 बिलियन ईयर्स का, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द प्रिमिटिव ब्रेन इन फिश 100 million years back, the first neuron or brain cell emerged in ocean water, not on earth. So that part of brain which is there in a fish or in a reptile or in a monkey, still it is there in our brain. So with modern neuroimaging, you can see all those parts of the brain, and we are still evolving for us. And it is still evolving. I really don't know 100 million years from now how the brain is going to look like. Neuroscientist says that it is growing posteriorly. You know, we'll have all hump on the back in times to come. So so this is how I would say this is modern neuroimaging will tell you the parts of brain. Older brain, we still possess those older brain. That was smell brain. Mostly, you know, people used to work on smell, not on intelligence or thinking earlier in lower species like still, which is today. So whole idea is brain. Those who understand software, you have a parallel processor, a serial processor, right part of the brain. So left brain of yours would amount, you know, to think what are the worries, what we need to do, what income tax rate is going to be all about for me. So these kind of things. Right brain, where it is a brain which creates harmony, peace. We all are in peace and harmony here today. Nice, in a nice environment. So our left brain is somewhat suppressed and right is working more as of now. So basically the brain, which is a mysterious organ, still a lot of research is going on called brain. As I said, this governs. I'm lifting my hand up, it is the virtue of my brain. So it governs every function of your body. So let's say somebody has sudden onset, किसी को अचानक चेहरे पे टेढ़ा हो गया, अचानक हाथ पांव पे कमजोरी आ गई, अचानक बोलने में प्रॉब्लम हुई। पहले रुबीना ने बताया, बाकी सब लोग फास्ट की बात की हमने। Facial weakness, sudden onset of चेहरे पे टेढ़ापन आए। A stands for sudden onset of arm or leg weakness, अचानक हाथ पांव में सुन्नता या कमजोरी आए। S stands for speech problem, भाषा को बोलने या समझने में दिक्कत। और T is for timely intervention. I tell you, this is a dreaded disease. If you have a massive stroke, 50% do not survive. 25% will be left with disability. Even if President of India has a massive stroke, there is no way, you know, he can survive if he has a massive stroke and he is not treated in time. In time. You cannot wait for a stroke patient to be treated outside your own town, city, or any other place. So this is the magnitude of the problem. Well, before I dwell into stroke treatment or timely treatment,
They are small, we call them low hanging fruits. What you can do is, हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, गैंग्रीन हो पाँव का, रोकने के लिए सिंपल जो चीजें हैं, आपका बीपी कंट्रोल रखिए, शुगर कंट्रोल रखिए, लाइफस्टाइल सीडेंटरी ना हो, आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए, ये सब चीजें की जा सकती हैं। अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखिए, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर हैं। कुछ चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी एज, आपकी रेस, आपका जेंडर, वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अभी महाराज साहब से आते वक्त मैं ये बात कर रहा था कि मैग्नीट्यूड कितना है हमारे कंट्री में। हर 20 स्ट्रोक, जैसे मैंने बताया, फास्ट याद रखिए और डिसेमिनेट करिए इंफॉर्मेशन को। WHO बोलता है 1 in 6, इफ यू नो अबाउट स्ट्रोक, एजुकेट 6 people and that is how we can conquer this menace। तो जब मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है, केस फैटेलिटी रेट इतनी ज्यादा है, देखिए ब्रेन ऐसा अंग है जो वापस नहीं बनता। चमड़ी चली गई, दोबारा बन जाएगी, लीवर डैमेज हुआ, रीजनरेट हो जाता है, बट देयर इज नथिंग लाइक रीजनरेशन इन आवर ब्रेन। ब्रेन गॉन इज गॉन। तो जितना बचा सके, पर मिनट 1.5 मिलियन न्यूरॉन्स खत्म होती हैं अगर हम ट्रीटमेंट समय पर ना करें। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रेन एंड वी से कि अगर 1 घंटा अगर हमने ट्रीट नहीं किया इलाज को, 1 घंटा स्ट्रोक को ट्रीट नहीं किया, तो हमारी लाइफ के 3.5 साल वैसे ही खत्म हो गए। उसके बाद ट्रीट किया, बच गया इंसान, बट 3.5 years आर लॉस्ट। मैं ये सब डाटा सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ सेंसिटाइज करने के लिए कि समय की कितनी महत्वता है। टाइम इज ब्रेन, यही। सो दिस इज थीम ऑफ द ईयर फॉर 2022, मिनट्स कैन सेव ब्रेन, मतलब समय पे इलाज कराइए। वेल, गिरीश से जब मेरी बात हो रही थी, मैं पिछले 15 सालों से यहाँ काम स्ट्रोक में कर रहा हूँ, बैंगलोर से आने के बाद। देखिए, यूरोप में काम किया, यूएस में काम किया, लेकिन हमारा सिस्टम अलग है। मुझे बहुत, अभी मैं महाराज साहब से बात कर रहा था, जब मैं पहला जब स्ट्रोक कैंप किया, लकवे का कैंप किया, तो मैंने आवरी माता मंदिर में किया, जो आपके उसमें आता है सर। आवरी माता मंदिर में मैंने जाके देखा, जब वहाँ पे वो बरसों से चला रहा था कि आज से 15 साल पहले लकवे के पेशेंट जो वीआईपी होते थे, जब मैं मेडिकल कॉलेज उदयपुर में था तब, वो आईसीयू में होते थे, जो जनरल होते थे वो जनरल वार्ड में होते थे, और जो वीआईपी होते थे वो दिल्ली और मुंबई शिफ्ट हो जाते थे। दिस वाज द बेंचमार्क एंड दिस वाज द ट्रीटमेंट। विगत 15 सालों में होता ये था कि हमने जब ये कैंप किया वहां पर, जब पहली बार ब्रेन का एंजियोग्राफी प्रदेश में जब शुरू किया कि ब्रेन में एंजियोग्राफी होता है, तो सर्वप्रथम राजस्थान में, चूंकि उदयपुर में ये शुरू हुआ था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एजुकेट करना लोगों की। मॉडर्न इलाज क्या है, देखिए, तो रोक सकते हैं बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा इलाज, आप ब्रेन का जहाँ पे एंजियोग्राफी की सुविधा है, जैसे कि पैसिफिक में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर है, एंजियोग्राफी करके ब्रेन का क्लॉट अगर हम निकाल लें 6 घंटे में, और मैक्सिमम 12 घंटा या किसी किसी केस में 24 घंटे तक अगर हम ये कर पाए, देखिए ये टेक्निकली बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, राउंड द क्लॉक आपके पास 24/7 टीम है, तो 15 मिनट का काम होता है ये करना। तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू आया स्ट्रोक के इलाज में, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। यहाँ स्टेंट से क्लॉट निकालते हैं, हार्ट की तरह स्टेंट अंदर छोड़ते नहीं है, बेसिक डिफरेंस है। तीसरा, स्ट्रोक यूनिट, आपके पास ये सब सुविधाएं नहीं है। सामान्य उसका बीपी, शुगर, उसको फिजियोथेरेपी अच्छा कराइए, उसको स्टार मत कराइए, उसको समय पे पूरा कैलोरीज दीजिए, फ्लूइड दीजिए, छोटी छोटी चीजों से भी आउटकम में डिफरेंस आता है। इस एरिया को बोलते हैं स्ट्रोक यूनिट। आप में से जो बाहर से आए, आप जब जाएंगे तो स्ट्रोक यूनिट राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट साइड में रिहैब एरिया है, सामने न्यूरो आईसीयू है, इधर वार्ड्स हैं। सो यू हैव टू प्लान एंड यू हैव टू हैव विजन फॉर दीस थिंग्स फॉर ट्रीटिंग सच पेशेंट्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो अंदर प्लाक पड़ा है 20%, उस बम को डिटोनेट कैसे होता है, वो मैकेनिज्म सजेस्ट किया। वो जब प्लाक और बैक्टीरिया का जो इंटरेक्शन होता है, वो somehow there are mechanisms, ये पब्लिकेशन है, those who are interested go in detail, बट वो बैक्टीरिया कैसे स्ट्रोक करता है, उस प्लाक जो अंदर छोटा सा 20% प्लाक, उसको कैसे वो रप्चर कर देता है और कैसे स्ट्रोक या हार्ट अटैक क्रिएट करता है। तो दिस वाज वन थिंग वी पब्लिश्ड एंड द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। और डीएसटी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट में, सो वी आर डूइंग दैट। सेम टाइम स्ट्रोक, आपने सुना होगा हार्ट अटैक होता है तो आपने सुना ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीपी कैम्बी ट्रॉप्टी करके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिससे पता चलता है कितना सीरियस है। हमारे पास कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है स्ट्रोक में। अभी गांव में अगर आप जाएंगे तो वहां पे सीटी स्कैन एमआरआई नहीं होगा, तो आप कैसे प्रोग्नोस्टिकेट करें। जो कोविड टाइम आया, कोविड टाइम में हर जगह पीसीआर मशीन्स अवेलेबल हो गई। उस कोविड पीसीआर होता था तो गवर्नमेंट ने बहुत थर्स्ट था
पीसीआर मशीन के माध्यम से सेल फ्री प्लाज्मा डीएनए, अगेन ये फर्स्ट टाइम हमने देश में जो प्रपोज किया, जो 300 रुपए का टेस्ट है, उससे स्ट्रोक की प्रोग्नोसिस मतलब कितना सीवियर है वो पता चलता है, तो हम सही इलाज उस मरीज का कर पाते हैं. सो दिस वाज वन थिंग जो इस यूनिवर्सिटी से गया था. वेल, सो दिस इज आई विल बी स्किपिंग मेनी ऑफ दीज थिंग्स. तो उसका जो जीवन है वो मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारी है. अब देखिए, रिहेबिलिटेशन की बात करता हूं. अभी मैं अपने जफर हैं, मेरी टीम में डॉक्टर तिवारी हैं. रिहेबिलिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट. रिहेबिलिटेशन मतलब टू मेक पीपल रिज्यूम हिज वर्क अगेन. रिहेबिलिटेशन बुद्धि का भी हो सकता है, जो एक साइकोलॉजिस्ट करेगा. हाथ पांव की कमजोरी का हो सकता है, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट करेगा. आवाज का हो सकता है, जो स्पीच थेरेपिस्ट करेगा. और सपोज मेरे में ताकत आ गई पर मैं भूल गया कंघी कैसे करते हैं, तो कंघी कराने की शिक्षा मुझे मिलेगी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से. सो यू कंबाइन 4 ऑफ देम टुगेदर, मेक ए न्यूरो रिहैब प्रोग्राम एंड डू इट. तो वो काफी हद तक फायदा कर सकता है. हमने स्मार्टफोन के थ्रू 100 रुपए में पर सेशन सारे स्पेशलिटी को मिला के जो दिए दूर रिमोट विलेजेस तक, विच वाज अ वेरी गुड आइडिया. बट हर जगह आज भी ये संभव नहीं है. हमारे देश में जो उपलब्ध है वो रिहेबिलिटेशन यूज करिए. आपके पास आयुर्वेद का रिहेबिलिटेशन है तो आप उसे यूज करिए. आपके पास मिट्टी के लेप से ठीक होने का रिहेबिलिटेशन है तो उसे करिए, उसमें फेथ रखिए, उसे करिए. योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. जो आपके यहाँ उपलब्ध है उसको मन से रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में रखिए. और ऑफ कोर्स अगर आप सही जगह पे पहुंच पाते हैं तो उसका अपना एक अलग ही महत्व है. आई वुड फिनिश हियर. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स और क्वेरीज, यू आर प्लीज मोस्ट वेलकम. Procedural formalities related to stroke and thereafter. I would like to request our Dean, Honorable Dean Dr. M. Mangal ji, to say a few words. Classing in Mewar Sahab in this Pacific Medical College. I congratulate Dr. Atullah and team. I give sincere thanks to Rahul Agarwal, Chairman, for creating such a wonderful neuroscience center in this institution. I think our center is the best in this part of the India. I can proudly say this is the best center, and in form of Dr. Atullah, we have the best neurophysician in our center. I welcome you all again. Request our distinguished Vice Chancellor Dr. A.P. Gupta ji to illuminate us with his motivational words. Dr. Atullah elaborated upon all the things which are possible in this conclave and which has been happening here in Neurosciences Department. Honorable guests which are on the dais and those who are sitting in front of me also, all the nursing staff, all the resident doctors and all the nursing staff which are teaching today, because there are many lectures being taken by our own teaching nursing staff which has worked in stroke unit for last 10 years. They have got expertise which is much above than any novice doctor who has passed his MBBS or doing his post-graduation. So I salute all of them, including Pappuji and Rajendra, everybody. And I found that since its inception, PCNS department, Pacific College Center for Neurosciences, has got constant team for stroke care, and they have become now experts in stroke. And today it's a fortunate day that they are the main speakers and we all are listeners. So it will be a real transmission of practical experiences of this team. Now PMU has been associated with neurology department since its inception, and in my mind as a Vice Chancellor, whatever I could do for neurosciences department, I have been doing it. For your information, PMU had a memorandum of understanding with Medanta Neurosciences Department. Dr. Vinay Goyal is heading the department, and with them we have got a MOU for movement disorders. And our fellow selected in movement disorders is sent for 6 months to Medanta, to Vinay Goyal, who is an expert in movement disorder in the world. Fortunately, I have been associated with him with this journal, and I have been reviewer of that journal. And he has been my student, and I am very proud of it that he is a product of R&T Medical College. So we are fortunate to have a collaboration. Second thing we started with the university in collaboration with Dr. Atullah Vajpayee was
to start a course on fellowship in behavioral rehabilitation. So that course has been started. How many candidates are there? As of now, one. First As if started. now one is there, and this will be a great boon for those who suffer from stroke and who recover from them. And this neurobehavioral training will lead to availability of manpower, which will restore them to their social places and occupation at a faster rate. I hope that today's deliberation, which is started slightly late, but will continue for a long time, and after that, on top of that, there is a panel discussion by Dr. Tulab Bajpai, Narendra Mal, Ramakant and Justin, and they will solve all the confusions and problems related to this conclave. I wish them success. Happy learning to everybody who is present over here. Thank you so much. आप बप्पा रावल से महाराणा कुंभकर्ण, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह आदि की अमिट विरासत और ख्याति को अक्षुण्ण रखते हुए उस विराट वैश्विक सोच की धारा को अविरल गति से प्रवाहित करने में उद्यत हैं, जिसके लिए मेवाड़ और मेवाड़ राजवंश की अमर पहचान है। आप 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, जो उदयपुर की एक शान एवं होटल व्यवसाय विरासत को अक्षुण्ण रखने में विभिन्न क्षेत्रों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान के पुरस्कारों से अलंकृत हैं। I request Maharaj Kumar Shri Laksharaj Singh Ji Mewar to enlighten us with his views. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इतने वर्षों में पहली बार आपने जो है वो मुझे पहली सफ में जो है वो बिठा दिया। अक्सर जो है हम लोग आखिरी बेंच पर बैठने वाले लोग हैं। डॉक्टर वैसे हंस सकते हैं, उनके कोई ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं है, पर मैं सबसे पहले जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पैसिफिक कॉलेज को, डॉक्टर वाजपेयी को, कि आज की तारीख में जो ये काम किया जा रहा है, जो इस सोच को लोगों तक पहुंचाने का जो एक काम किया जा रहा है जिससे कि जानें बच सकती हैं। ये बात मैं कोई गर्व से नहीं कहता। अक्सर इन चीजों को पहले मजाक में कहा करते थे, और आज आकर यहाँ पर जो शिक्षित हो रहे हैं, जो ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं चीज जो है वो सच्चाई नजर आती है, और वो सच्चाई जो है वो दिल को दहलाने वाली सच्चाई है। मैं अक्सर पहले ये कहा करता था कि दूसरे सबसे सस्ती चीज जो अपने देश में मिलती है ना, वो राय। तो हर चलता फिरता आदमी जो है सबसे आसानी से वो राय दे के निकल जाता था, पर सबसे पहली सस्ती चीज जो हमारे को हमारे देश में मिलती है, और इस बात को मैं किसी गर्व से नहीं या खुशी से नहीं कहता, और वो है हमारी जान, कि हम लोग उसकी कितनी कदर वाजपेयी ने जो हमारे को एक रोशनी डालकर जो हमारे को जागरूक किया है। देखिए, मैं इस बात से कहने में बिल्कुल भी नहीं कतराना चाहूंगा कि सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस सभागार के अंदर कोई है तो वो मैं हूँ, और मेरी आज आंखें जो है वो इन चीजों के प्रति जरूर खुली हैं। आप लोग सब शिक्षित लोग हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, और एक कमरे में बैठकर इन चीजों के ऊपर आप लोग इन चीजों की सोच अगर एक आम जन तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर जब हम देश दुनिया के अंदर जाते हैं, चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, और हमको ये समझ में आता है कि हम लोग हमारे देश के अंदर एक जान को कितनी अहमियत से हम लोग रखते हैं या देखते हैं, उसको तब्दील करने की ताकत अगर कहीं है तो वो इस सभागार के अंदर मौजूद है। उसमें भी जो टी का जो महत्व है वो मेरे कहीं ना कहीं समझ में आया, और वक्त जो है वो हमारे लिए कितना अहमियत है, और वक्त हमारे लिए क्या मायने रखता है। आपको एक बहुत ही शिक्षित तरीके से इस चीज को बताया गया, पर मेरा जो एक मानना है, वक्त मेरा एक विषय है, उस चीज के ऊपर हम लोग काफी चर्चा भी करते हैं, काफी विचार विमर्श भी करते हैं, काफी उसके ऊपर हम लोग बातचीत करने का एक प्रयास करते हैं, पर यहाँ पे जो वक्त है वो कहीं ना कहीं हमारी जान से सीधे तरीके से जो है वो जुड़ा हुआ है। और आप देखिए, एक मेरे बड़े मित्र और मेरे बड़े भाई, उन्होंने वक्त को बहुत खूबसूरती से जो है वो समझाया है, और मैं मानता हूँ कि अगर उसकी अहमियत है तो आज की तारीख में इस दौर के अंदर है, और इस वक्त को लोगों तक पहुंचाने के लिए, एक आम जन तक पहुंचाने के लिए ये सोच कहीं ना कहीं हमारे को बहुत जरूरी है। आज आप किसी विद्यार्थी से पूछने के लिए जाएंगे कि 1 साल की अहमियत क्या होती है, तो वो आपको विद्यार्थी बता पाएगा जो 1 साल फेल हुआ है। उसको पता है कि उस 1 साल की क्या अहमियत है।
अगर हम लोग जो है वो 1 महीने की अहमियत अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो उस माँ से पूछिए जिसने 1 महीने पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है। अगर हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं उस 1 हफ्ते की अगर हम लोग जो है वो अहमियत समझना चाहते हैं, हमारे मित्र, हमारे मिलने वाले भी यहाँ पे पत्रकार बंधु लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 1 हफ्ते की अगर हम लोग अहमियत जानना चाहते हैं तो साप्ताहिक अखबार निकालने वाला जो कोई व्यक्ति होगा तो उससे पूछे कि 7 दिन की अहमियत क्या होती है। अगर हम लोग जो है 1 दिन की अहमियत अगर समझना चाहते हैं तो उससे पूछिए जिसको 24 घंटे बाद फांसी लगने वाली। अगर हम लोग 1 घंटे की अहमियत समझना चाहते हैं तो उन प्रेम और प्रेमिका से पूछिए जो 1 घंटे के बाद में बिछड़ने वाले हैं। अगर हम लोग जो है उस 1 क्षण की अगर अहमियत समझना चाहते हैं तो उससे पूछिए जिसकी ट्रेन उसके सामने ही निकली। यहाँ तो वाजपेयी साहब हमारे को घंटा भर दे रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका वाला टाइम करेंगे। तो वो 1 घंटे की जो हमारी एक अहमियत है, जो 1 घंटे से 6 घंटे के बीच में या 12 घंटे तक जो हम लोगों को एक सहूलियत मिल रही है कि हम उस चीज के ऊपर करें, उस चीज के लिए अगर हमारे को किसी चीज की आवश्यकता है तो एक जागरूकता की आवश्यकता है, एक समझ की आवश्यकता है, एक सूझबूझ की आवश्यकता है। मैं पुनः आप लोगों को, पूरे पैसिफिक परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बस मेरी एक ही गुजारिश आप लोगों से ये होगी कि इस सोच को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक एक सरल तरीके से जो है वो पहुँचा सकें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन चीज़ों से दिन रात सुबह शाम आप लोग इन चीज़ों को देखते हैं, पर जो गैप आता है, कहीं ना कहीं जो फासला आता है, जो दूरियाँ आती है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आती है जो ज़मीन पर आदमी है, वो लड़का जो है वो 19 साल का, वो उसको समझने में, करने में, आगे पीछे होने में, क्योंकि उसको खुद को अपनी अहमियत शायद इस चीज़ के बारे में पता नहीं थी और हम हमारी जान को किस प्रकार से लेते हैं वो अभी हम लोगों ने चर्चा करी। अंत में मेरे जहन में 2 पंक्तियां जरूर आती हैं, उनको कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं और पुनः परिवार का जो है पैसिफिक परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। Dr. A.P. Gupta Sahab, our VC, Dr. M.M. Mangal, our Dean, to kindly come forward and award the fellow staff of Neurology Department for their exemplary and dedicated services. I'm not going on a tie version of second position or the first runner-up. It's Mr. Pappu Dhakar and Raghavendra Singh for their exemplary services in Neuro ICU and Stroke Department. अच्छा, आपका नाम खूब सुना सर जी। राघवेंद्र को दिखा। आइए सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। It's not and tirelessly support to Dr. Vajpayee in the heavy mechanism support to patients. नूतन पार्टी करेगा इनहेरिटेंस के लिए। Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Many congratulations once again on the great job. आज हम विश्व लकवा दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड स्ट्रोक डे। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि लकवे के बारे में जो कि हमारे लास्ट ईयर के जो डेटा हैं, 18 लाख लोगों की मृत्यु लकवे से हुई है। शारीरिक अपंगता का ये सबसे बड़ा कारण है। इसके बारे में, इसके लक्षणों के बारे में लोगों को अवेयरनेस, जो आज हमने यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैब टीम सभी का जो वर्कशॉप आयोजित किया है, उसमें लकवे के लक्षण जो होते हैं, क्योंकि फास्ट की जो बात करते हैं, सडन ऑनसेट ऑफ फेशियल वीकनेस यानी चेहरे पे टेढ़ापन हो, सडन ऑनसेट ऑफ आर्म एंड लेग वीकनेस यानी कि हाथों में शून्यता या कमज़ोरी आए, स्पीच चेंजेस, एस से जो है मतलब भाषा को बोलने या समझने में दिक्कत हो, और टी से टाइमली इंटरवेंशन। देखिए 4.5 घंटे में अगर लकवे का मरीज आएगा तो सिंपल एक आईवी इंजेक्शन से लकवे को रोक भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर 12 घंटे के अंदर पेशेंट आता है तो एक एंजियोग्राफी करके क्लॉट को, बड़ी धमनी को अगर ब्लॉक किया है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये समय पे अगर पेशेंट पहुंच जाता है, शुरुआती समय में हर मिनट 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स खत्म होती हैं, और ये जो मस्तिष्क में क्षति हो रही है ये इरिवर्सिबल है, मतलब ब्रेन वापस नहीं बनता है। तो जितना समय पे इलाज शुरू करते हैं उतना मस्तिष्क को बचा सकते हैं, मरीज का लकवा ठीक कर सकते हैं।
और साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसको रोकने के लिए सिंपल जो है हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना रहे, रेगुलर आधा घंटा एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग, अल्कोहल एक्सेस इसको अवॉइड करें, तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। ये साधारण चीज़ें अगर करेंगे तो लकवा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को रोक सकते हैं और काफ़ी हद तक इस मेनेस पे हम काबू पा सकते हैं। धन्यवाद। और महाराज साहब के आने का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बिकॉज़ महाराज साहब लास्ट मोमेंट पर इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम हमेशा उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें इस तरह के आयोजनों में आगे भी लोगों को प्रचार प्रसार में और जैसा कि उन्होंने हमें मदद का आश्वासन दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर वाजपेयी ने जो बातें कही वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली है और कहीं ना कहीं हमारे खुद के जीवन की जिम्मेदारी हम लोगों को खुद को लेनी पड़ेगी। अब वो वक्त नहीं रहा कि जब हम टालम टोली करके किसी और के सर के ऊपर हमारी जिम्मेदारी को रख दें। ये बात मैंने पहले भी कही है कि आज की तारीख में अगर हमारे देश के अंदर हम लोग किसी चीज़ को बहुत ही सस्ते तरीके से लेते हैं तो वो हम हमारी जान को लेते हैं। अब वक्त आया है, ऐसे दिवस जो बने हैं उनका कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है गंभीरता से इस चीज़ के ऊपर चिंतन करने का विषय है, चाहे हमारे घर परिवार के अंदर हो, हमारे पड़ोस में हो, हमारे आजू बाजू में हो, हमारे काम के क्षेत्र में कहीं पर भी हो। तो जिस प्रकार की जो सिखलाई हम लोगों को अलग अन्य तरीकों से और अलग अलग तरीकों से जो दी जा रही है, और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर वाजपेयी ने अभी फास्ट की जो हम लोगों को बात करी, और स्ट्रोक्स जो हैं हर 2 मिनट के अंदर जो है एक जान को हमारे देश के अंदर जो है वो ले रहे हैं, ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं। तो हम लोगों को सबको मिलकर एकत्रित होकर जो है इसके ऊपर काम करना है और हमको ये साबित करना है कि हम हमारी जान को बहुत ज़्यादा अहमियत से और जिम्मेदारी से लेते हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।